ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। You will now listen to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today. Question number 136, Manisi Saket Gokhale. Question number 136. प्रश्न संख्या 136। क्या जनजातीय कार्य मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए प्रदान की गई पर्यावरणीय और वन मंजूरी के स्थानीय जनजातीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, और ख ग्रेट निकोबार परियोजना के अंतर्गत विभिन्न जनजातीय समूहों से संबंधित कुल कितने लोगों को दूसरी जगह बसाए जाने की संभावना है। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री जुवेल ओराम, जनजातीय कार्य मंत्री। उत्तर सभा पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री साकेत जी। It's unfortunate that in the response to the question tabled on the floor, the ministry has declined to answer, saying that this matter is sub judice. So what I'm going to do is, I'm going to try and make it easier for the ministry to answer this question. Please. Remove anything that might be sub judice, even potentially. So this issue pertains to the Shompen and Nicobarese tribes, which are affected by the Great Nicobar project. So we're talking here about a very particularly vulnerable tribal group, which does not have any representation in this house. And therefore, they've led isolated lives throughout. They don't have contact with the outside world. So I just request 30 seconds of your time to introduce my question, and they'll ask my question in one line. So the Shompen and Nicobarese tribes are traditionally native to the Great Nicobar Islands, and they were displaced during the 2004 tsunami when it hit their island. So after they were temporarily resettled, and then they had requested that they be taken back to their native islands. That's been a long pending demand of these tribes. So even today, the Shompen and Nicobarese tribes, they depend on their native islands for plantations, for foraging, and the land is also very sacred to them. So my specific question is, can the ministry confirm that and this is not sub judice, can the ministry confirm that the Tribal Council of Great Nicobar has constantly opposed the denotification of the village of Chingen, Kokion, Pulo Pakka, Pulo Baha, and Ihangloi for the Great Nicobar project, and what has been the action taken by the ministry on the letter of the Tribal Council of Great Nicobar dated 22nd November 2022, withdrawing the NOC given to the Great Nicobar project because they claim the NOC was obtained after giving them false information. Thank you. माननीय मंत्री। सर, जो मान्यवर सदस्य ने, विद्वान साथी ने प्रश्न उठाया है, वो उसका आधार वो स्वयं दे चुके हैं कि सुनामी के समय में उस एरिया में लो लाइन एरिया होने के कारण वो लोग को तकलीफ हुआ, इसलिए वो लोग शिफ्ट कर गए। और उनका जो अब आपत्ति है, ऐसा हम लोग का जानकारी मंत्रालय के पास नहीं आया है। लेकिन ये जो एनजीटी का निर्णय के बाद एक हाई पावर कमेटी बनाया गया है, जिसमें आपका फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और बाकी सब इसमें है, और एनजीटी ने जो जो निर्देश दिया है उस लाइन में काम हो रहा है। तो इसलिए मान्यवर सदस्य का चिंता में, एक तो पहला बात बता दूं कि एक भी आदमी उसमें से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, अभी एक भी नहीं हो रहा है। 7.144 आपका स्क्वायर किलोमीटर ही ट्राइबल रिजर्व जमीन उसमें से यूज होगा, बाकी सब फॉरेस्ट लैंड दूसरा है, लेकिन उसमें से कोई डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो इसलिए उनका जो आपत्ति है बोल रहा है, ऐसा नहीं है। ग्राम सभा भी इसको एग्री किया है और पास किया है। तो इसलिए मान्यवर सदस्य का जो आपत्ति है, इसमें इतना ही मैं बोल सकता हूँ। आप क्योंकि हाईकोर्ट में ये पेंडिंग है, तो उसको विथड्रॉ करने के लिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं बोल के, ऐसा पब्लिक में से कोई आया नहीं है। Second supplementary, Saket ji. Thank you, sir. There's a bit of a contradiction here because, as I asked in my question, the Tribal Council has revoked the NOC. It doesn't matter. Based on what the Honorable Minister said, he said an empowered committee was appointed to examine this issue. So I have a question. So this ministry, as he said, included representatives of his ministry as well. Sir, as part of this committee's proceedings, a video report documenting the opposition and objection by the tribal communities to the Great Nicobar project was submitted by a very famous anthropologist called Dr. Vishwajit Pandya to the committee. So my question is in two parts.
Part 1, sir. Will the minister please state whether Dr. Pandya's video report documenting the opposition of local tribes to the Great Nicobar project was taken on record by the Empowered Committee? If yes, and I want to request this, will the minister kindly provide a government assurance that the submissions received by the Empowered Committee, the detailed meetings of the committee meetings, and Dr. Pandya's video report will be tabled on the floor of the House? That's my first part, sir. My second part. So the House must know that there is only 229 members of the Chopin tribe existing in this world. That's how vulnerable they are. So in the recent Lok Sabha election that happened, only 7 of them cast their votes. So my question and my humble request, sir, is that if you want to protect the right of the Chopin tribals to vote and also for the rest of the Indians, sir, I believe this House should have a discussion on the duplicate voter ID issue at the earliest next week. Thank you. Yes. सर, ग्रेट अंडमान ये एरिया में मैंने स्वयं पहला जनजाति कार्य मंत्री के नाते जारवाज को, अंडमानीज को और ग्रेट अंडमानीज को, इनको मैंने मिल के आया हूँ और उनसे बातचीत भी किया है। ये जो जिनको आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम बता रहे हैं, उनका वीडियो रिकॉर्ड हम लोग के पास नहीं है। ऐसा ओपोजिशन का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर मान्यवर सदस्य उसको भेज दें मंत्रालय में तो हम उसको एग्जामिन करेंगे। हम एग्जामिन करेंगे, आपको इतना एश्योर कर रहे हैं, हम एग्जामिन करेंगे और उससे आगे क्या बोल सकते हैं, हमारा पास नहीं है वो रिकॉर्ड। थैंक यू। माननीय जयराम रमेश जी। The Great Nicobar mega infra project is a mega environmental and humanitarian disaster. It's very unfortunate that the answer to this question has not been given because it is claimed that the matter is sub judice. So I want to draw your attention to the chairman's ruling given on 21st of July 2023. The Honorable Chairman, to whom we send our best wishes for a full and speedy recovery. We all join you. The Chairman says on the 21st of July 2023 that this House is entitled to discuss everything under the planet with one restriction. That restriction relates to Article 121 of the Constitution. And what is Article 121? The only restriction placed on a discussion in Parliament is the conduct of a judge of a Supreme Court or the High Court. This is the only restriction. So it's very unfortunate that the answer to this question has not been given, and I request that an answer be given at a subsequent date, because this Great Nicobar project is a recipe for environmental and humanitarian disaster. Thank you. It's individual opinion, even then you can respond. सर, ऐसा है, आपने एडमिट किया, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। आप ये सबजुडिस है, रूल के हिसाब से आप इसको एडमिट नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने एडमिट कर दिया। अब मैं इंसार दे रहा हूँ और मैं पूरा फुल भारत सरकार के ओर से जो भी आपका सूचना वो मांग रहा है उसको हम देने के लिए तैयार है। सर, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है। हम बताता हूँ सर, आप सुन लीजिए पहले। 11/8/2016 को डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें 9 मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म, स्पेस, शिपिंग, ट्राइबल अफेयर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, इनका बैठक होके इसमें निर्णय हुआ कि क्योंकि ये बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट में है, आपको जानना चाहिए। आपका ये साउदर्न पूरा लास्ट में है, साउदर्न आइलैंड का लास्ट में सिचुएटेड है और आपका सी रूट, इंटरनेशनल सी रूट जो है मलाका स्टेट का, ये 40 किलोमीटर दूर में है। सर, मैं 5 साल डिफेंस कमेटी का भी मैं चेयरमैन था और मैंने वो अंडमान निकोबार का भी मैं रिव्यू करने गया था, जिसमें कि आपका ये कमांड है उसमें। तो ये जानबूझ के सर, ये देश का हित के लिए ये प्रोजेक्ट आवश्यक है, तो इसलिए इसको बनाया जा रहा है। कोई डिजास्टर नहीं हो रहा है। जयराम रमेश जी, आप जानते हैं मैं आपको, आप मेरे से आपका कैसा परिचय है ये हम जानते हैं सर। आप व्यक्तिगत बंधुता है। हम पोस्टो जैसा कंपनी को भगा दिया। हम ट्राइबल का खिलाफ में ये सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार कभी भी नहीं जाएगा। सरकार एक ट्राइबल भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और एनवायरमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। इसका ग्रीन ट्रिब्यूनल में जो निर्णय दिया है वो निर्णय के हिसाब से पूरा हम लोग चल रहा है। हम इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। थैंक यू। डॉक्टर कल्पना सैनी।
डॉक्टर कल्पना सैनी। निकोबार परियोजना का दक्षिण एशिया में भारत को एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार केंद्र बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना और क्षेत्रीय विकास को गति देने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है? माननीय मंत्री। सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन सर। डॉक्टर कल्पना सैनी जी पुनः पूछ रहे माननीय मंत्री जी। ग्रेट निकोबार परियोजना का दक्षिण एशिया में भारत को एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार केंद्र बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना और क्षेत्रीय विकास की गति देने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है? माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूं। सर आप जानते हैं हम लोग अंडमान का पॉइंट में है। आप यहाँ बताना, आप चाइना जाके श्रीलंका का आपका हमानटोटा में बैठ रहा है, तो हम क्या छोड़ेंगे क्या अपना पॉइंट को? तो इसलिए ये सब टाइप का इंफॉर्मेशन आपको देगा और पूरा ये देश के लिए बहुत ही जरूरी है। सोशियो इकोनॉमिक, आपका कमर्शियल, बाकी सब आप सी रोड से 40 किलोमीटर दूर में है सर, और इसलिए हम उसको नहीं छोड़ सकते। और ये कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो खराब इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ये सब लाभ ही लाभ है, विन विन सिचुएशन है सर। लास्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर फौजिया खान। Thank you, sir. Sir, research proposals to modify habitats on Great Nicobar have raised concerns regarding their impact on the indigenous Chopin tribes. Sir, anthropological studies have demonstrated that the Chopin are not a homogeneous group, but are instead divided into multiple bands, and each occupying distinct ecological niches and exhibiting unique cultural practices, languages, and adaptive strategies, sir. However, much of the existing research is based on data from only 3 to 4 bands, which is widely acknowledged as insufficient, sir, for capturing the full spectrum of the diversity. Please put question. In that context, have any specific band-targeted impact assessments been commissioned to evaluate how the proposed habitat modifications will differentially affect each distinct Chopin group? Thank you. बाहर जा रहा है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, शैम्पेन, जारवा और ग्रेट अंडमान, ये सब के बारे में मैं मिला हूँ सर। मैं व्यक्तिगत मिल के उनके साथ टाइम बिता के आया हूँ। ऐसा कोई स्टडी, उनका तो एक तो लैंग्वेज है नहीं, डायलेक्ट है। डायलेक्ट भी बहुत लोग समझ नहीं सकते हैं। कोई रिसर्च कर रहा है तो कर रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कारण किसी का भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 137 माननीय श्री एस सलमान के व्यक्ति। सर क्वेश्चन नंबर 137। प्रश्न संख्या 137। क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क आंगनवाड़ी योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा क्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं? ख गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं और विगत 3 वर्षों के दौरान ऐसी कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं? ग क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक हैं? यदि नहीं तो क्या इस मामले में अब तक किसी वर्ग से कोई शिकायत प्राप्त हुई है? और घ क्या आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पालन पोषण हेतु कोई नियमित निगरानी तंत्र मौजूद नहीं है? यदि हाँ तो ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई निर्धारित है? माननीय मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री। पुट योर फर्स्ट सप्लीमेंट। पहला सवाल। Sir, the Portion Tracker app developed by the Government of India is designed to facilitate better monitoring and management of integrated child development services, where the Anganwadi workers are key part of it. The use of technology like the Portion Tracker app aims to improve the efficiency and the effectiveness of Anganwadi programs, ultimately benefiting the target beneficiaries. I would like to ask the Honorable Minister through you, sir, whether the Anganwadi workers have been using the smartphone facility for Portion Tracker app in order to help manage their activities and track beneficiaries, and how effectively the Anganwadi workers update the data. जवाब।
माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि हमने जो पोषण टेकर में हर जगह हर आंगनवाड़ी को हमने दे रखा है और वो उसके स्मार्टफोन के माध्यम से पोषण टेकर को हम उसको मैनेजमेंट करते हैं ताकि आंगनवाड़ी में आने वाली बच्चे, आंगनवाड़ी में आने वाली गर्भवती माताएं, हमारी किशोरी बालिकाएं, तो इसके माध्यम से हमको उसको मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसी कई जगह नहीं है कि हम नहीं दे रहे हैं, कई जगह ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां पर हमारा स्मार्टफोन है, कई जगह से जनजाति इलाके हैं जहां पर वहाँ रेंज के कारण दिक्कत आती है, पर उसके बावजूद भी हम लोग 3 दिन के बाद भी जब वो रेंज में आता है तो तब जाके हमारे मंत्रालय द्वारा उसका मॉनिटरिंग की जाती है और वो पूरे इस दिशा में हम काम करते हैं ताकि सही व्यक्ति को सही पोषण दिया जाए। Second supplementary. So the sanitary conditions of many Anganwadis are unsatisfactory, and the preschool education is extended to 3 years in the new education policy. Will the government consider prescribing minimum standards and extending financial assistance to state governments to ensure health security of children in such places, and also whether the Anganwadis have a role in the new education policy to play? Thank you. माननीय सभापति महोदय, मैं सदस्य को बताना चाहूंगी कि अब हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को, लाभार्थियों को पेयजल और स्वास्थ्य और स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना हमारा पहली प्राथमिकता है। दूसरा, हम अन्य आवश्यक जो चीज़ें जो स्वास्थ्य संबंधी है, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका होती है, हम पूरे पेयजल और शौचालय और इसके ऊपर ध्यान देते हैं ताकि उनको अच्छा खाना मिले, अच्छा जल मिले। आरओ लगा रहे हैं, उसमें हम एलईडी लगा रहे हैं ताकि हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छा पोषण देना और शिक्षा, अच्छा पोषण देना और स्वच्छ जल देना, यह हमारी प्राथमिकता है। और शौचालय की सुविधा भी, और हर जगह पूरी जगह हमने नहीं कर पाए हैं, बाकी जहाँ जहाँ है वहाँ पर 36, पहले हमारे 12,000 थे, अब उसको बढ़ाकर हमने 36,000 कर दिए हैं। तो ये हमने पेयजल में भी पहले 10,000 थे, अब 17,000 कर दिए, तो सब जगह सुविधा उपलब्ध है और स्वच्छ जल हम बच्चों को पिलाते हैं। धन्यवाद। श्रीमती रजनी पाटिल। I would like to ask through you, sir, is the government aware that the Anganwadi workers are not recognized as government employees and that their monthly honorarium ranging between 5,000 to 10,000 is significantly lower than the minimum wage in many states? Given that the low remuneration makes it difficult for them to meet their basic needs and affects their ability to fully dedicate themselves to the work. Does the government have any plans to increase their honorarium to provide them with employees' benefit? Additionally, what steps are being taken to address the frequent delays in the disbursement of their honorarium to ensure financial security of these workers? Thank you. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है पूरे देश में हर जगह है और हमारी सहायिकाएं भी हैं और उनको हर सुविधा हम देने के लिए तैयार हैं। उनको हम उनको जो वेतन भत्ता होता है वो हम देते हैं और साथ ही उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, जो उनको आयुष्मान भारत से हमने जोड़ा गया है। और ऐसी जितनी भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम हमारी 18,000 हमारी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत से जोड़ा गया है। इसमें सभी जितनी भी हमारी
कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, उनको आयुष्मान भारत से जोड़ा गया है, जीवन ज्योति से जोड़ा गया है। और जब हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जहाँ ग्रामीण अंचल में जो काम करती है, उनके लिए हम 4,500 तो देते ही हैं, पर अगर वो अच्छा काम कर रही है तो हम प्रोत्साहन राशि भी उनको हम देते हैं। तो इस तरीके से हम हर समय को हम एक प्रोत्साहन राशि देते हैं। थैंक यू। माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण पहलू जो हमारे कई साथियों ने कहा, स्कीम वर्कर्स इस देश के अधिकांश योजनाएं चला रहे हैं, तो जाहिर है उनके मानदेय में बढ़ोतरी प्राथमिकता होनी चाहिए। थ्रू यू ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, recent reports suggest that the funds for Anganwadi workers and supplementary nutrition program have been delayed in multiple states. Can the government provide a state-wise breakdown of pending payments and the reason thereof? Thank you. धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों को बताना चाहूंगी कि हमारे जो केंद्र सरकार के जो मापदंड है उसके अनुसार हम देते हैं। ये राज्य सरकार को अपने खुद के नियम है जो वो उनके हिसाब से देती है, तो ये उनके राज्य के नियम है। और राज्यवार अगर सदस्य चाहेंगे तो मैं राज्यवार आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगी। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा। डॉक्टर दिनेश शर्मा। माननीय उपसभापति महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने काफ़ी अच्छा काम कोरोना के समय भी किया है और नित्य प्रतिदिन इनके जो दायित्व हैं बढ़े हैं। इन्होंने कुपोषण के क्षेत्र में भी उनकी जांच के लिए काफ़ी काम किया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मिशन पोषण 2.0 के तहत कोई लाभार्थी शिकायत निवारण तंत्र है? क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में तो 971 करोड़ रुपए अतिरिक्त मानदेय के रूप में भी दिया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, लेकिन मिशन पोषण के अंतर्गत कोई लाभार्थी शिकायत निवारण तंत्र है या नहीं है, इसका एक भ्रम मौजूद रहता है। धन्यवाद। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, सदस्य ने अच्छा प्रश्न करा। लाभार्थी को शिकायत रोकथाम के लिए पोषण 2.0 के महत्वपूर्ण हिस्सा है कि पोषण टेकर वेबसाइट है, वो मोबाइल ऐप के आधार पर सुविधा जिसमें बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है, जो पोषण टेकर 14408 पे नंबर 2022 से शुरू किया गया है। हेल्पलाइन के माध्यम से पोषण 2 की जो तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ये हेल्पलाइन 20 भाषाओं में उपलब्ध है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 138 माननीय श्री बाबू भाई जयसंग भाई देसाई। प्रश्न संख्या 138। क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण पोक्सो अधिनियम जैसे कानूनों की प्रभावशीलता के वर्तमान आकलन पर सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता हेतु कितने वन स्टॉप सेंटर OSC स्थापित किए गए हैं और उनके द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। माननीय मंत्री जी। श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला और बाल विकास राज्य मंत्री। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मैं माननीय मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों के शारीरिक शोषण अपराधों से बचाव के लिए स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता और सुरक्षा उपायों की सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा, और यदि नहीं है तो उसका कारण क्या है? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगी कि सरकार ने 2019 में सरकार ने यौन अपराधों से पीड़ित महिलाओं को और बच्चों के लिए अदालतें न्याय दिलाने के लिए राज्यवार फास्ट ट्रैक विशेष है, जो अदालतें स्थगित आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। ये जनवरी 2030 से 30 राज्यों में अब तक की है और प्रदेश में भी 404 विशेष पॉक्सो एक्ट है। अदालतें सहित कुल 745 फास्ट ट्रैक अदालतें हैं
जो जल्द से उनको न्याय दिलाती है। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, शारीरिक शोषण से पीड़ित बच्चों के मानसिक और शारीरिक पुनर्वास के लिए क्या योजना है और सरकार ने काउंसलिंग सेवाओं और पुनर्वास केंद्रों को सशक्त बनाने के लिए विशेष बजट या नीति तैयार की है क्या? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूंगी कि ऐसे बच्चों को हमारे इसमें महिला बाल विकास द्वारा जो निर्भया फंड है उसके माध्यम से हम उनको समय से जो उत्पीड़न उनके साथ हुआ है उसके लिए हम सहायता करते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है और ये हम उनको पूरी तरह सेफ्टी देते हैं। धन्यवाद। माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी। Thank you so much, Chairman sir. Sir, my question is with regards to the marital rape incidents that we see. It's an unfortunate reality in India, the 21st century India, that marital rape is still not considered a crime in India. And we have seen several instances. So my question is, what are the voluntary measures available for victims of marital rape, including access to counseling, therapy and healthcare? And are there any government-funded support programs specifically addressing marital rape survivors? Thank you. माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो हमारी महिलाओं को ऐसी जो बालिकाएं होती उनके कम उम्र में कोई उनके साथ ऐसा हो जाता है तो उनकी सहायता के लिए हमारे मंत्रालय द्वारा जो वन स्टॉप सेंटर पूरे देश में खोले गए हैं और हर जिले स्तर पर है। एक पश्चिम बंगाल छोड़ के हर जगह वन स्टॉप सेंटर है और वन स्टॉप वैसी है जो जहां महिला उसको 181 हमने कॉल फ्री टोल फ्री नंबर रखे हैं ताकि वो 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकती कहीं भी परिस्थिति में। दूसरा, उनको जब कॉल करेगी तो हम उसी समय उसको तत्काल 20 मिनट के अंदर हम उसको सहायता प्रदान करते हैं। दूसरा, अगर वो ऐसे जिले में अगर है जहाँ ऐसा इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, आने जाने की व्यवस्था उसको वो अकेली है, वहां पर कोई साधन नहीं है, तो हमारे पास एक गाड़ी की व्यवस्था भी है। तुरंत उसको गाड़ी से वहां पर लाया जाता है और उसको काउंसलिंग भी, जितने वन स्टॉप सेंटर है वो स्वास्थ्य विभाग के पास है, उनकी काउंसलिंग की होती है और उनको पूरी सुविधा भी उपलब्ध। अगर वो ऐसी पीड़िता अगर है और वो बाहर जैसे आ गई है हमारे वन स्टॉप सेंटर में तो उसको 5 दिन रहने की भी हमारी व्यवस्था है, जो 5 दिन वो रह सकती है। बाद में अगर वो चाहे कि मैं यही रहना चाहती हूँ 5 दिन तो ये यही, और उसके बाद वो अगर उसके परिवार को बुला के अगर उसका सलाह मशवरा हो जाती तो वो उसके घर जाती है। अगर वो चाहे कि नहीं मेरे को नहीं जाना है तो उसको और भी हमारे सेंटर है उसमें उसको रखा जाता है। धन्यवाद। माननीय सुलता देव। माननीय सुलता देव, प्लीज। सर माइक। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध आज के डेट में उसका स्टैटिस्टिक्स क्या है लास्ट 5 साल को कंपैरिजन को लेके। और एक बात है कि जो महिला और बच्चों के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए अर्बन और रूरल एरिया में कि कोई नई स्कीम या लॉ बनाया गया है, अगर है तो क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पर 7 महीने में 54 मास रेप केसेस हो चुके हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर थैंक यू। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सरकार महिलाओं में हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं और उनको अब यह हमारे वन स्टॉप सेंटर तो है ही, साथ ही अब सार्वजनिक और कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र में भी अगर कोई काम करती है महिला और ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर है तो उसको भी सुविधा हम देते हैं। वो है एक सी बॉक्स करके एक बॉक्स है, उसके माध्यम से वो अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर सकती है और वो सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर कन्नीमोजी एनवीएन सोमू। डॉक्टर कन्नीमोजी एनवीएन सोमू। Sir, in the POCSO, the adolescent age groups between 17 to 18 who become a victim, what are the protections toward them and what are the compensations provided to them? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए,
जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए हमने शोषण से उत्पीड़न बचाने के लिए कानून बनाया गया है। उस कानून को 2019 में इस अधिनियम को बदलकर हमने अब सख्त कानून को मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया है, जो कि अब जो पहले कानून था उसमें परिवर्तन करके अब ऐसे कानून की कोई भी ऐसे घिनौना हरकत अगर बच्चों के साथ किया है तो उसको मृत्यु दंड देने तक का प्रावधान इस सरकार ने किया है, तो अब वो नहीं बच सकते। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 139 माननीय श्री नीरज डांगी। प्रश्न संख्या 139। क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा देश भर में अब तक आयोजित नीट यूजी परीक्षाओं के लीक होने के कारणों का ब्यौरा क्या है और इनके खिलाफ दर्ज मुकदमों की स्थिति क्या है? क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की परीक्षाओं में अनियमितताओं और गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त और सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में अधिकतर संविदा कर्मचारियों पर निर्भर है? यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा रहा है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। श्री सुकांता मजुमदार, शिक्षा राज्य मंत्री। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय नीरज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मेरा पहला सप्लीमेंट्री प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेई मेंस आयोजित करने का कार्य करता है, इन दोनों परीक्षाओं के आयोजन में एनटीए पूरी तरीके से अलग पैटर्न का इस्तेमाल करता है। एनटीए निष्पक्ष मूल्यांकन कैसे सुनिश्चित करता है? जब नीट 20 लाख छात्रों के लिए एक ही पेपर के रूप में आयोजित किया जाता है, जबकि जेई मेंस लगभग 15 लाख छात्रों के लिए 10 अलग अलग पेपरों में आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रश्नों का अलग अलग पैटर्न है और कठिनाई स्तर भी अलग अलग होते हैं। साथ ही जेईई के प्रश्न पत्रों में बार बार होने वाली गलतियों और त्रुटियों से छात्रों के मनोबल पर भी प्रभावित करती है। एनटीए पिछले कुछ वर्षों से सर मैं प्रश्न पे ही आ रहा हूं सर, भूमिका बनाए बिना सर प्रश्न बैठेगा नहीं। लंबा भूमिका लेंगे आप तो फिर सर बात तो रखनी पड़ेगी, इतना बड़ा इशू पूरे देश में चल रहा है सर, बाकी लोगों को भी मिले। सर नीट एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा है और इसमें परिणाम बार बार संशोधित किए जाते हैं। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के अंदर बोनस अंकों का प्रावधान कैसे है, यह संगठन के घोटाले को स्पष्ट करता है। धन्यवाद। भविष्य में ऐसी प्रश्न पे आ रहा हूं, भविष्य में ऐसी समस्याओं और अनियमितताओं को दोबारा होने से रोकने के लिए एनटीए ने क्या कदम उठाए हैं और सरकार द्वारा एनटीए को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? धन्यवाद सर। उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि नीट और जेईई मेन अलग किस्म की क्वेश्चन होती है, अलग पद्धति है, स्वाभाविक है। एक में आप इंजीनियर ढूंढ रहे, एक में डॉक्टर ढूंढ रहे, तो अलग ही होगा, दोनों का स्टाइल अलग होना है। दूसरी बात है कि बार बार माननीय सदस्य की तरफ से ये कोशिश किया गया कि लीक हुआ है, ऐसा कुछ बार बार गड़बड़ी हुई है, लेकिन जो कोर्ट की अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें, जो मैं हमारी तरफ से माननीय सदस्य को बताया भी गया है कि मैं कोर्ट कर रहा हूं, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रीट पिटीशन हुआ था 335/2024 पैरा नंबर 84 में अगर हम देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है, हेंस sufficient material is not on record at present which indicates a systemic leak or systemic malpractice of other forms। तो मैं थोड़ी सी पोर्शन कोट कर रहा हूं, और उसके बावजूद हमारी सरकार में जब से ये प्राप्त हुआ रिपोर्ट, हमने सीबीआई इंक्वायरी दे दी। डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में कमेटी बन चुकी है, जो कमेटी अपना रिकमेंडेशन बहुत लगातार उन्होंने 23 दिनों से लोगों के साथ सलाह की, डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की। यहाँ पे हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर थम्बी दुराई जी है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट किए। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया और उसके बाद केंद्र सरकार को उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है, बहुत सारे रिकमेंडेशन हमारी सरकार ने, हमारी मंत्रालय ने उसको लागू भी कर दिया है। जैसे मैं 1-2 रिकमेंडेशन बता सकता हूं कि उसमें हमने डायरेक्टर लेवल में
16 पोस्ट की वहाँ पे नई पोस्ट इंक्लूड किया गया, उसमें से डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर 8-8 करके उसमें नए पोस्ट क्रिएट किए गए, उसमें नियुक्ति भी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि स्वच्छ व्यवस्था से एग्जाम हो और आप पूरी इसमें विश्वास रख सकते हैं, पूरी देश विश्वास रख सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम कोई भी मैल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय नीरज जी ब्रीफली मैं तो बहुत ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठा रहा हूं जिसपे पूरे देश के छात्रों का भविष्य निर्भर कर रहा है। सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ी बात है। सवाल पूछिए। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है, क्या सरकार मानती है कि जिस परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ उसकी पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी वहां के परीक्षा प्रभारी और अन्य संबंधित अधिकारियों की थी? यदि हां, तो क्या अब तक कितने अधिकारियों के खिलाफ निलंबन या कानूनी कार्रवाई की गई है? और क्या सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों की निगरानी को और अधिक कठोर बनाने पर विचार कर रही है? धन्यवाद। 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 उपसभापति महोदय के आज मैं पहले बता चुका हूं कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है और सीबीआई इंक्वायरी के साथ साथ उन्होंने 5 चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है और जिसमें ऐसे 45 एक्यूज्ड इन नीट यूजी पेपर ऐसे स्टूडेंट पाए गए हैं और जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करने की जिन्होंने ऐसी इंस्टेंसेस पाए गए हैं जिन्होंने शायद मैल प्रैक्टिस करने की कोशिश की है और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। लेकिन आदरणीय उपसभापति महोदय, बार बार ऐसे कोशिश किया जा रहा है कि क्वेश्चन, जैसे मैंने महामहिम सुप्रीम कोर्ट का भार्डिक्ट को कोट किया, लेकिन ऐसे कोशिश किया जा रहा है कि लीक हुआ है। थोड़ा इतिहास भी देख ले, हम देख ले इतिहास में क्या हुआ था। अगर आए एम्स पीजी, तब पीजी एम्स का एग्जाम होता था। 2006 में इंसिडेंट पेपर लीक और मैल प्रैक्टिस रिपोर्ट किया गया। ICAI 2007, सुनिए ना, अरे अगर नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा। 2007 में कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT बोला जाता है, क्वेश्चन लीक हुआ था। क्लैट 2009, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2009 वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू द सस्पेक्टेड क्वेश्चन पेपर लीक। ये बहुत सारे इंस्टेंसेस है, मैं बोलता चला जाऊंगा तो इतना बड़ा लंबा लिस्ट है, तो मैं बोलना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, बट हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि जो भी ऐसे छिटपिट घटना अगर घटती है, नीट एग्जाम में भी जितने भी 2-4 केसेस ऐसे हमारे सामने आए हैं, हमारी सरकार उसमें व्यवस्था ली है और सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। ऑलरेडी 5 चार्जशीट दाखिल किया गया है। तिरुचु शिवाजी, क्वेश्चन। Thank you, sir. Sir, I want to substantiate the question which was asked by Mr. Neeraj Dangi, for which I think we didn't get the reply. The CBI has filed a charge sheet, 5 charge sheet in the NEET UG exam paper theft case against a total of 45 accused. First of all, it's not only a theft case, it's a leakage. We would pointedly ask how many public servants are involved in this leakage and what actions have been taken. It's a very clear question. It's not some students or someone who has appeared for the examination. Thank you. It is a leakage from the main center, how it was leaked and how many have been identified, how many cases have been booked on them, how many are accused and arrested. Thank you, sir. उपसभापति महोदय, अगर I would like to answer Tiruchu Shivaji, who is the respected member of this house, through you, that already Supreme Court has given the verdict that there is no systemic leakage. So if we call it is a leakage, then I think we are disobeying or disrespecting the verdict of the Supreme Court. Then sir, I would like to mention also that our government first time, before that, what is the leakage, the definition was not clear. हमारी सरकार ने पहली बार द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 यहाँ पे लाया गया हमारी सरकार के समय में, जिसके द्वारा पब्लिक एग्जामिनेशन में ऐसी धांधली जैसी चीज अगर आती है तो उसमें क्या क्या पनिशमेंट होगा, लीकेज क्या है, पनिशमेंट की दायरा बढ़ाया गया कि अगर कोई पर्सन रिपोर्ट अनफेयर मीन्स अगर वो स्टूडेंट है अगर ले रहा है, सो
shall be punished with imprisonment for a term not less than 3 years, but which may extend up to 5 years and fine up to 10 lakh rupees. अगर कोई सरकारी सर्विस प्रोवाइडर जो सिस्टम में है, the service provider shall be liable to be punished with a fine of up to 1 crore rupees and with recovery proportionate cost of examination. It shall be barred from conduct of public examination for the next 4 years. Please take it. So, हमारी सरकार ने, our government has made the provision and we made the rule. Here response you have given. We made the rule, and with the help of this rule, there are so many provisions in this rule, we can carve the incident of the leakage. And in this incident, whatever the Shivaji is mentioning, in that incident, already I mentioned, if there is no systemic leakage as mentioned by the Honorable Supreme Court. So obviously, the steps should be taken or will be taken against those people who have availed the unfair means. So that's why the students, those 45 students, we have informed the authority where they are studying. We have informed those authorities. The authority will take the appropriate decision. Thank you. Dr. M. Thambi Durai. Dr. M. Thambi Durai. Thank you very much, sir. Honorable Minister mentioned my name. I appeared before the Radhakrishnan Committee. That's a fact. Sir, I want to know from the Honorable Minister, because of these coaching centers, mushroom coaching centers, NEET examination, other centers, the students of the +1, +2 not attending classes, they are going there. And also because of the aspiration of the students going there to get admission for MBBS and other courses, that these centers, all the root cause for this kind of leakages may be there, I doubt. Because I may correct or not, these centers, Kota, other place, what people, Tamil Nadu people are going to Kota, write examination. Some people are, because your state going, why they are going? No the centers, there is, first, let the other government come forward to ban these coaching centers. Because to even get the primary school, we have to get the permission. But coaching centers, commercially they are running, lakhs of money people are losing. Whether the government come forward first to ban this kind of coaching centers, which this may be the root cause for these leakages. Thank you. Manya Mantri ji. Sir, Upsavapati Mohoday, as I mentioned, Dr. Thambi Durai, one of the senior member of this house, and he participated in that discussion. So, according to his opinion, the coaching center may be one of the reasons of this kind of leakage. So we have made some, as I mentioned in my previous answer, that in the Act, the Public Examination Prevention and Unfair Means Act, we have made some, act through which we can punish those people who will try to breach in the system. And we are trying to strengthen our system so that no one can breach into our system of examination. And we are, even NTA is using CCTV. They use the metal detector for the students, for the searching of the students, and they are taking several steps. And the Radhakrishnan Committee also, they have recommended that there should be a relationship between the state government and as well as the central government for conduction of this kind of examination. Even to implement this recommendation of Radhakrishnan Committee, we made one steering committee with 4 members. That steering committee is looking after the recommendation, how they are getting implemented. And they are observing, they have already conducted 3 meetings within this period, and they are looking after the implementation of all these recommendations of Radhakrishnan Committee. And I feel that if the recommendation of if we implement the recommendation of Radhakrishnan Committee fully, then I think this type of incident will be curbed. Thank you. Mani Rita Brat Banerjee. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, despite recommendation for online examinations by the Radhakrishnan Committee, the government has decided to continue with the pen and paper mode for any NEET UG 2025. I want to know from the government through you, sir, could the ministry elaborate on the rationale behind this decision
and outline any interim measures being adopted to safeguard the examination process against potential malpractices. Thank you. Thank you. Sir, so there are several recommendations made by the Radhakrishnan committee. Some are long-term recommendation that need some time to implement, and some are some can be done very easily or very in swift manner. So I would like to share the action taken by the government to the Honorable Minister Ritabrata Da. The immediate action points that recommended. Honorable member. Oh, sorry, honorable member. Sorry, sir. And he's known to me personally, so that's why maybe my emotion came out. So the immediate action points that those have been recommended by the committee, the strengthening of NTA, as I mentioned, that we have created 16 posts there, 8 directors and the 8 joint directors. Out of those posts, 3 already have joined there. And involvement of the test indenting agencies as the knowledge and the examination partner. So the high-level committee also, they have recommended that the NTA should develop the institutional linkage with the state and the district authorities. Already I have mentioned. And government has taken, as I mentioned, the several steps. We have convened one national workshop by the Ministry of Education on the 12th and the 13th November of 2024 with the state additional chief secretaries, principal secretaries, and involvement of to ensure the involvement of the state government and the district administration. Ministry of Education has written the letters to all the state government and UTs for establishment of the institutional mechanism between NTA and the states, and meeting under the chairmanship of the Union Home Secretary with the chief secretaries and the DGPs already happened. So these are the steps we are taking now. For the other recommendations are obviously there, and in the near future the government is trying to implement the recommendation of the Radhakrishnan committee. Thank you. Question number 140, माननीय दोरजी तेसरिंग लेपचा. प्रश्न संख्या 140, क्या मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि विगत 3 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM के अंतर्गत देश में गायों की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण एवं उनकी संख्या में बढ़ोतरी के लिए किए गए कार्यों का राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? ख. पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर सिक्किम में स्वीकृत गोकुल ग्रामों की संख्या कितनी है? ग. क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग RKA में याक को शामिल किया है? घ. यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? और अंग. सरकार द्वारा देश में पशुधन के संरक्षण एवं विकास के साथ साथ स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, उठाए जाने का प्रस्ताव है? नॉट प्रेजेंट. माननीय मंत्री जी. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री. सर, सभा पटल पर रखा जी. फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय. नर्मदे हर. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश के ग्रामीण व विशेषकर हमारे आदिवासी इलाकों में पशुपालन को बढ़ावा देने व पशुपालन से जुड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए कौन-कौन से प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं? धन्यवाद. माननीय मंत्री. उपसभापति महोदय, उत्तर में बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि देश में जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजना चलाई गई, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के दूध के उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की गई. इस योजना के तरह पूरे देश में हम लोग इस योजना को चला रहे हैं. और जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उसमें विशेष रूप से हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं. जो दूध के उत्पादन के राष्ट्रीय गोकुल मिशन में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हम देसी नस्लों में कैसे सुधार ला सकते हैं, और उस पर सुधार लाने में हम लोग काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की. आपका जो देसी कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो हाई क्वालिटी के जो बुल हैं, उन बुल्स का सीमेन सेंटर में कलेक्ट करके और उसको कृत्रिम गर्भाधारण के माध्यम से हम
अनुवांशिक सुधार कर रहे हैं अपने पशुओं में, उसके कारण जो प्रधानमंत्री जी ने ये शुरू किया, उसके कारण जो प्रोडक्शन बढ़ा है, ये आपको आश्चर्यजनक उपसभापति महोदय है। 2014 तक हमारे देश का पूरा दूध का उत्पादन 146.31 मिलियन टन था। आज 10 वर्षों के अंदर में हमारा 63.5% ग्रोथ है और इस साल हमारा 239.30 मिलियन टन ग्रोथ हुआ है। वही नहीं है, हम आज दुनिया में नंबर 1 पर हैं, पूरे विश्व में नंबर 1 पर हैं दूध उत्पादन। हमारे जो प्रति व्यक्ति दूध का खपत है, वह भी, उसमें भी हम आज दुनिया में 1 नंबर पर हैं। हम 417 ग्राम प्रति व्यक्ति हमारी देश की दूध की उपलब्धता है। तो ये उपलब्धि है। तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो योजना है उसको हम लोग पूरे देश के स्तर पर व्यापक तौर पर चला रहे हैं। हमने बीज केंद्रों के बारे में बताया कि कृत्रिम गर्भाधारण के माध्यम से 5 कृत्रिम जो सरकारी वीर्य केंद्र हैं वो 5 सरकारी वीर्य केंद्र हैं और इसके अलावा 3 प्राइवेट सेक्टर में भी सेक्स सॉर्टेड सीमेन के केंद्र हैं, जहां से सेक्स सॉर्टेड सीमेन को पूरे देश में हम लोग आपूर्ति कर रहे हैं और उसको दूध के उत्पादन को और उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं। हम लोगों का संकल्प है कि 2029 तक हम इतना दूध का उत्पादन कर लेंगे कि हम पूरे दुनिया में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री ऑनरेबल श्री आर गिरिराजन नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री ईराना कडाडी। उपसभापति महोदय, कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान गौवंश की स्थानीय नस्लें के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है और बेलगावी जिले में इस योजना के अंतर्गत कितने गोकुल ग्राम स्वीकृति हुए हैं? महोदय, ये मूल प्रश्न जो था वो नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम से रिलेटेड था, इसलिए कर्नाटक का हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे कर्नाटक का पूरा। जी धन्यवाद। माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा। महोदय, माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है, बहुत अच्छी जानकारी है। किसान जो डेयरी उत्पादन से जुड़े हुए हैं, इनफर्टिलिटी एक बड़ी समस्या उनके सामने होती है और मेल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने से फिर उनका नुकसान होता है। तो उस दृष्टि से सेक्स सॉर्टेड सीमेन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन बिहार के किसान अगर लेना चाहें तो कौन सा सेंटर है, कहां से ले पाएंगे? और अब तक कई राज्यों के बारे में बताया गया है कि उत्पादन केंद्र है उत्तर प्रदेश इत्यादि में, बिहार में कोई उत्पादन केंद्र नहीं है। तो वहाँ के किसान अगर इसका लाभ लेना चाहें तो कहाँ से ले पाएंगे और अब तक वहाँ के कुछ किसानों को इसका लाभ मिला है कि नहीं? धन्यवाद। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि जो इसका रिजल्ट है, जो मेल चाइल्ड के बारे में उन्होंने कहा कि बछड़ा पैदा होता है, जो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का रिजल्ट है जो अब तक आया है, 90% सफलता है बछिया पैदा होने के मामले में। और जहां तक सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का सवाल है, बिहार में कोई केंद्र नहीं है, लेकिन हम सभी राज्य सरकार के माध्यम से जो हमारे वीर्य केंद्र जहां सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके माध्यम से हम लोग वहां उपलब्ध करा रहे हैं राज्य सरकार को, और राज्य सरकार के माध्यम से हम लोग किसानों के दरवाजे तक भी इसको उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक सुविधा भी रखी है, वो मैत्री है, जो मैत्री सेक्स सॉर्टेड सीमेंट किसानों के दरवाजे तक जाके उसको आर्टिफिशियल इन्मिनेशन का काम वो करती है। धन्यवाद। लास्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर भागवत कराड़। Honorable Deputy Chairman sir, through you I want to ask Honorable Minister, there are different indigenous cow breeds in our country. Which breed gives more milk and what steps taken by the government to increase number of these breeds? माननीय मंत्री।
उपसभापति महोदय, जो अभी हमने कहा कि देसी नस्ल, हमारी जो जितनी भी देसी नस्लें हैं, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे वो गिर हो, चाहे थारपाकर हो, हर देसी नस्लों के सुधार के लिए हम सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग कर रहे हैं। और उन पशुओं में जो जिस टाइप के पशु हैं, गिर में हम गिर का ही सीमेन आर्टिफिशियल एआई करते हैं, सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करते हैं। थारपाकर में हम उसी जानवर का और उसी के जो बुल है उससे पैदा किए गए सेक्स सॉर्टेड का हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जितने भी हमारे देसी नस्ल हैं, सबों के आर्टिफिशियल इम्यूनेशन का काम हम उसी के हाई क्वालिटी का, जैसे मैंने कहा कि हाई क्वालिटी के बुल्स के द्वारा हम बीज का उत्पादन करते हैं और उसको उसी अनुवंश के पशु में उसको हम डालते हैं ताकि वो उसमें क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हो, वो उसी नस्ल के पशु उपलब्ध। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 141 माननीय श्री जोस के मनी। प्रश्न संख्या 141। क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कौशल विकास पहलों में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है? सरकार किस प्रकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम नामांकन और कम भागीदारी दर वाले राज्यों को पर्याप्त सहायता मिले? और क्या देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। श्री जयंत चौधरी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। So thank you, sir. The finance minister announced a 2 lakh crore investment over the next 5 years for skill development and internship programs. However, despite multiple initiatives like the PMKVY, the employment scenario remains concerning. While official reports indicate 54% placement rate under PMKVY, independent analysis suggests that only 22.16% of trained individuals have secured job. Even the female participation in the training program is significantly low. So my question is, this is due to the mismatch between the training program and the industry demands. So the question is, what measures is the government taking to bridge this gap and ensure skill development program are aligned with the current job markets? Thank you, Mani Mantri. Sir, thank you. Very good question by honorable member. Scaling programs are designed to be aligned with what industry requirements are. And as the House, all members know that today's industry 4.0, is well concerned with what are the future skills that are going to be coming up. It's a very dynamic space, and we are constantly revising, reiterating our programs, working in close consultation with industry so that the target interventions are actually effective. I would like to point out a specific instrument which we use under PMKVY, because honorable members spoke about it, which is where we do MOUs and flexi MOUs with industry partners. So I'd like to take a few names. As recently as October, we signed an MOU with a company, sir, and I have the information here. We have a total of 11 MOUs. So Subro's company, we just did an MOU in October. And in a flexi MOU, the intervention is designed that the curriculum will be created by the industry partner. Sometimes the training is done at the facility of the company, but the assessment is carried out in our ecosystem. Subros ke saath jo humne kiya hai, for instance, the curriculum is designed by Subros. It is NSQF aligned, but a regional ITI will undertake the assessment. So this is how we are getting a true partnership and involvement and fair share of the industry. Honorable member also spoke about poor women participation. Sir, the actual data does not support what he's saying. I'll point out, under PMKVY, total of 45% pan-India women participation is there. In our JSS program, Jan Shikshan Sansthan, almost 83% women participation is there. Yes, in our NAP scheme and ITI, which is done by DGT, women participation is lower.
But we are constantly encouraging our industry partners and our ITI ecosystem. There is also a reservation policy which brings up more women into the fold. Thank you. Second supplementary. Sir, with the rapid advancement in AI, automation, and the green technologies, the nature of job is evolving. Traditional skill training program may not fully prepare the workforce of future industry. To remain competitive, India needs a structural approach to incorporate these technologies into skill development initiative. Hence, I would like to ask the Honorable Minister if there are specific government partnership with the private sector, education institutions, or international organizations to introduce advanced technology-based skill training program. Further, has the government identified key industries and subsequent training initiative where AI, automation, and green technologies will create significant employment opportunities? Thank you. Our ministry works in close coordination with the Ministry of MeitY as well. Our AI mission, semiconductor mission, green hydrogen mission, and in several cases our industry partners are also given the status of an awarding body, which means that they are doing the training, they are doing the certification, and that certification is aligned with national priorities, and it is the same certificate that is awarded in any government institution. Sir, under PMKVY 4.0, there have been certain changes and reforms that we have gotten in through the process. One of the key priority areas is that we must create an ecosystem approach where credible organizations are our training partners. Question asked was about institutional capacity, whether we're working with educational institutions. Large number of institutes of national importance are also our partners and our training partners under PMKVY. Sir, IIT, IIM, and NITs are also undertaking training programs under PM Kisan Kaushal Vikas scheme. Our Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, from our school up, they are also doing a number of training programs. And apart from that, our NILET, AICTE affiliated colleges, private universities, as you are aware, a large number of states also have skill universities. We also work with them, in partnership with them, so the students that are already in these educational ecosystems, they are made more aware of the opportunities available for them. Thank you. Agla supplementary, Dr. Sikandar Kumar. Dr. Sikandar Kumar. Thank you, sir, for giving me the opportunity. Jal puche, 20 seconds, please. To you, whether the government has any data study report pertaining to a regional disparities in skill development initiative. If yes, then details thereof. And if no, then the government has any planning to prepare any study report regarding this. Thank you. Question hour is over. अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. You were listening to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.